respected BK, Dr. Parab sir, our respected chairperson, Dr. Asha Thakre madam, respected chairperson of IMA Women's Wing, Dr. Jagruti Shah madam, secretary IMA Women's Wing, Dr. Usha Gajbie, all the seniors who have logged in with us today, and my dear friends. I welcome you all for today's webinar, and I welcome our president for her opening address. A very good evening to one and all. The beautiful showers of rain since 2 days came with a beautiful message of revival and rejuvenation, thus lifting our spirits high as they washed away the accumulated negativity around us. BK Dr. Sachin Parab sir is here to uplift and make us believe it is still a beautiful world out there. We just have to grab the lovely things. We are honored to have you, sir, as a guest speaker today. Om Shanti. For the further proceedings, I hand over to Dr. Asha Thakre madam. Thank you, Meenal. Good evening to one and all. I feel honored to chair this session on very different topic, that is calm in crisis, is being the need of hour. I am grateful to all our own organizations like OBGY, WDW, and IMA for offering me such privilege. Nowadays, the whole society is undergoing some or other crisis, maybe losing dear ones, job insecurities, business problems, shortage of essentials, etc., etc. We are fortunate enough to have Dr. Sachin Parab with us. In spite of his busy schedule, he could manage to make him available for us, thanks to virtual platform, and thank you so much, sir, for honoring our invitation. Dr. Sachin Parab is MBBS from Mumbai University with specialization in clinical research. He is professional counselor, hypnotherapist, and corporate trainer. He is popular speaker for Peace of Mind channel with top-rated weekend special program of Secret of Ultimate Living, which is aired in 40 countries of the world. He is Joint Secretary of Medical Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Mount Abu. He is practicing and teaching Raj Yoga since last 23 years. He is visiting faculty of Training and Development of BSES MG Hospital, Andheri, Mumbai. Facilitator for Vihasa, that is Values in Healthcare, a spiritual approach for healthcare practitioners. He is recipient of Adarsh Doctor Award and Rotary Service Award. He has written a short motivational book on Samasyaon Se Samadhan Tak. He is project director of Global Initiative of Tobacco Awareness. He is national coordinator of My India Addiction Free India campaign. And I am proud to share that launching of this national campaign was held in Amravati at Brahma Kumari Center in the gracious presence of Honorable Ex-President of India, Srimati Pratibha Patil. Dr. Parab has implemented this campaign from Kashmir to Kanyakumari. He is recipient of Mahatma Gandhi De-Addiction Award from Government of Maharashtra. आता अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यामध्ये, कारण आता डी ऍडिक्शनचा विषय निघाला म्हणून मला हे खूप आवर्जून सांगावंसं वाटतं की अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यामध्ये जवळपास 100 शाळांना डॉक्टर सचिन परब यांनी स्वतः भेट देऊन माझी शाळा व्यसनमुक्त शाळा हे अभियान राबवलं. तर शहाण्यांना शहाणपणा शिकवण्यात काही अर्थ नसतो, ते लवकर शिकत नाही. आता इथे शहाणे म्हणजे 18 वर्षाच्या वरची, म्हणून डॉक्टर सचिन भाईंनी शाळकरी मुलांवर भर दिला. अमरावतीमध्ये शिवाजी कॉलेज, समर्थ हायस्कूल, सरस्वती विद्यालय इथल्या अभियानामध्ये त्यांच्यासोबत सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली होती. हे अभियान सुरू राहावे म्हणून त्यांनी कित्येक लोकांना याचे ट्रेनिंग दिले. आपली भावी पिढी व्यसनमुक्त राहावी म्हणून ते ज्या कळकळीने व पोटतिडकीने हे अभियान नव्हे चळवळ राबवतात त्याला तोड नाही. भावी पिढी घडविणे ही केवढी मोठी देशसेवा आहे. सर, तुमच्या कार्याला सलाम. Now, I kindly request our esteemed guest to please proceed for the journey towards calmness. We all are eager to board with you.
you very much. Thank you, and over to you. Om Shanti. Am I audible? Yes, sir. yes. Okay. Thank you very much for those kind words. I came to know that along with doctors, there are families also who are attending, and there might be some people who are non-medicals. So I'll be speaking the language of Mumbai, which is Hindi and Actually, English mixed, and of course in between Marathi also. भाई जी आपला आवाज क्लिअर येत नाही. ते आता 1 minute. आता क्लिअर येतोय का? Yes, sir. हो सर आता Okay. क्लिअर. ओके. तर मी हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश मध्ये बोलेन. मेजॉरिटी इन इंग्लिश. Can I show some slides? You can share yours. मी स्क्रीन शेअर करतो so that we can see the slides at the outset. मला असं वाटतं की आपलं लेक्चर काम इन क्रायसिस आहे, तर आपण थोडा वेळ 1 मिनिट सायलेन्सचा अभ्यास करूया स्टार्टिंग द सेशन. आणि जे कोविड योद्धे होते, ऑल दोज कोरोना वॉरियर्स, doctors, nurses, healthcare professionals, and those people who have lost their lives and those still suffering, we'll send them positive vibrations. We'll connect ourselves with the sun and the supreme energy, and we'll send good wishes to all the souls and to their families. First, feel that calmness within. Allow yourself to relax. Don't force yourself. Allow yourself to relax physically and mentally. And feel that calmness within. Peace. Relaxation and peace, they go together. Relax your face also. That peace. And allow it to spread from yourself. Allow it to radiate first to your home, then your surroundings, and all the people. Thank you very much. I don't know how many of you could quieten yourself when I ask you to. किती जण स्वतःला शांत करू शकले? Is it possible? I could see the excitement of the session. That is good. Excitement होना चाहिए, हम कुछ नया सीखते हैं. But my 26 years of practice is telling me that आप कितना सुनते हैं इससे ज्यादा कितना प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. I have been counseling many people और अभी मेरा current score है 10 people per day call me for counseling. और उसमें सभी स्पेशलिटी के लोग हैं. उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चिल्ड्रन, फैमिलीज. सो ये बता रहा है कि डेफिनेटली मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है. और आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा कि the doctors can spread this word of peace message through us, and the patients are following us. मैं स्लाइड्स दिखा के कुछ शेयर करना चाहूँगा. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन.
my presentation will start. Just tell me if you can see the screen. Not yet. Okay. Okay, till the screen is shared, it is getting open. I think it has also gone in calmness. Relaxed mode में गया है वो. But my voice is audible. I am audible. Yes, yes. So, okay. Since majority are doctors, I will start with the majority of us are doctors, and we know that the burnout. If you have heard the word burnout, I hope most of the doctor has heard the word. Sorry, कोणाचा तरी आवाज येतोय. Burnout is very common in healthcare professionals, and doctors are not an exception. In fact, Indian doctors are more prone to burnout compared to Western countries. Sachin bhai, we have lost your image and your sound also. Asha ma'am, I think Sachin sir has disconnected due to network problem. He will reconnect. So until then, we can continue with some other topic. Dr. Asha Thakre, I think we have lost Sachin bhai due to network issue. He will reconnect. So until then, we can continue with some other. We can add some points with the current topic. हॅलो मॅडम. बोला आशा मॅडम, काय म्हणता. थोड्या वेळ आधी ते बोलले होते Yes. मला की तिथे खूप पाऊस आहे मुंबईला, याद आहे तर कोण नाही. तर त्याच्यामुळे ते अच्छा. म्हणे की कनेक्टिव्हिटी लूज होऊ शकते म्हणून. हो का. हा, त्यांनी मला विचारलं होतं अमरावतीला पाऊस आहे का, तर मी नाही बोलली होती. तिथे खूप पाऊस आहे म्हणे मुंबईला. फोन करून विचारायचं, काय करायचं मग. तुम्ही बोला मॅडम फोनवर. मी फोन Call करून करू विचारते शकतो आपण त्यांना. त्यांना. हा, कॉल करून विचारू. चालेल. मी करते कॉल. Is gone. When this disturbance occurred, how many of you keep your mind still?
Just raise your hands so that I can see. आम्ही असं मराठीत म्हणतो जे काय होतं ते चांगल्यासाठी होतं. तर आपली टेस्ट पण झाली. हा क्रायसिस नव्हता. इट वॉज नॉट अ क्रायसिस. बट यू नो हाऊ मेनी ऑफ यू चेक युअर थॉट्स ड्युरिंग दिस की अरे आताच याला जायचं होतं, आता तर सेशन चालू झालेलं, वी जस्ट स्टार्टेड अँड सडनली स्क्रीन इज गॉन, ही वॉज शेअरिंग समथिंग, आय डोंट नो वेदर ही विल कम बॅक ऑर नॉट. त्यांच्याकडे पाऊस पडतोय की नाही, काय कोसळलं. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅड दिस थॉट्स? So this is what happens practically. Let me share you my experience of crisis. See, I am working with COVID patients since last 8 months, and my duty hours are 12 hours a day. आज भी मैं ड्यूटी करके आया हूँ. So what challenge I faced during COVID is, there are many challenges, but one I am sharing. When the vaccines came in the market, I was refused for vaccine. Can any one of you guess why I was refused? Anyone would like to answer why I was refused vaccine? Refuse for vaccine. I was refused vaccine. See, I work in IIT and I work in BST also, both the places. So being a government employee, मेरा नाम गया था vaccine list के लिए in the beginning, right in the beginning, first lot, but I was refused vaccine. Can anyone diagnose this malady of refusal for vaccine to a doctor? And the second, I give you time for diagnosis. Second reason, the crisis for me was I'm a case of asthma. Of course, controlled asthma. Asthma is a risk factor for working with COVID. You know that. Because it's already chest, he's prone to chest infection. So, I was required a certificate to be produced from chest physician that he's fit to work in COVID ward. And still I was not having vaccine. I don't know what is your diagnosis. Let me open the secret. The secret is I was allergic to drugs, painkillers, NSAID allergy. So all those people who are allergic, I get classical angioedema. So angioedema is a contraindication for vaccine. So I was refused vaccine. But you know, every day working with COVID patients and not taking vaccination and a risk factor of asthma, I still was continuing it. But in the end, earlier Covishield was there, and then Covaxin came. So Covaxin Mumbai मध्ये फक्त JJ Hospital ला देत होते. So I went to JJ Hospital, and the team of doctor there also said, "Sir, you are allergic to painkillers. You have classical angioedema, so we can't give you the vaccine." तो मैंने उसको कहा भैया मैं काम कर रहा हूँ, I'm working with Covishield patient, I need COVID-19 patient, I need vaccine. तो कुछ रास्ता बताओ. बोलते हैं हम दे सकते हैं अगर आप कंसेंट लिख के दो, साइन करो कि अगर कुछ हो जाता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क. So I said, okay, I am ready to give the consent. See, I work in ICU for 2 years, so we know how to manage the emergencies. So I first check what medicines they have. They have adrenaline ready, steroid ready there. Everything was kept. There were a team of doctors ready. मैंने कहा ठीक है सब ready है तो आप दे दो. And I gave a consent. And then they gave me the Covaxin shot. Luckily मुझे कुछ नहीं हुआ. Then I finished the 2 vaccines. But why I'm sharing you this? Initially I worked without vaccine for quite some time. Then later on I was given vaccine with a risk. But I took a decision. Crisis में क्या होता है कि people are not able to take a right decision in the crisis. When I say crisis, there are many crises. जैसे कि death हो जाना या financial loss. I have so many case studies of these 8 months which I can share with you. And people have survived this crisis. Some people have given up, some people break down, and some people break the records. So I'll be sharing those cases. First case study जो मैंने आपके साथ share की थी वो, he was an anesthetist, and the crisis he went through is the attack on the hospital, and the entire super specialty hospital was burned down because one leader had died.
and then that doctor developed palpitation, anxiety since then. He was a very good doctor. He's still a very good doctor. And he was given anti-anxiety medicines. Then he practiced meditation and he could control his anxiety. Second example I gave you of mine. Third example I'm giving from non-medical field. I don't know how many of you have heard. Financial crisis is a big crisis nowadays I'm seeing. मेरे पास जो भी केसेस आते हैं अभी कोविड की वजह से, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, इनकम कम हो गया, जॉब चला गया है, ऐसे लोगों को बहुत टेंशन है घर चलाने का. तो वन पर्सन केस फ्रॉम योर साइड आई एम कोटिंग, पुणे की है, आपने सुना भी होगा. आई शो दिस केस इन various of my sessions. Since most of the females are there, I would like to share the story of, I don't know, you must have heard about Lata Bhagwan Kare, a 65-year-old lady. How many of you heard about Lata Bhagwan Kare, 65-year-old senior citizen who won the marathon in Pune? So her husband was sick. She was not having money. उसके पास पैसे भी नहीं थे. गावावरून शहरात यायला पैसे नव्हते. शहरात आल्यावर तिला कळलं की मिस्टरांची तब्येत, त्यांना जर जीव वाचवायचा असेल तर पहिला MRI करावा लागेल. MRI साठी पण तिच्याकडे पैसे नव्हते. So she was crying in the OPD of a hospital when she saw in a newspaper कि लिखा हुआ है कि जो मैराथन जीतेगा उसको 15,000 मिलेंगे. अब उसको मैराथन क्या है ये भी पता नहीं. She is a typical village lady wearing 9-yard साडी, 9वारी साडी घालून, पायात चप्पल नाही आहे. अशा अवस्थेमध्ये शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड शी आस्क्ड देम कि मैं भागना चाहती हूँ. तो उन्होंने देखा कि ये ओल्ड लेडी है, सीनियर सिटीजन है, इसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जूते भी नहीं है भागने के लिए, पर ये भागना चाहते. तो उनको लगा ये थोड़ा भाग के रुक जाएगी, ये कहाँ तक दौड़ पाएगी. सो ऑन मर्सी ग्राउंड्स दे अलाउड हर, एंड लता भगवान करे, 9वारी साड़ी पहनने वाली लेडी, उस दिन मैराथन में दौड़ी और उस मैराथन में सरप्राइजिंगली शी केम फर्स्ट. उन्होंने पहला नंबर लिया. शी वोन द अवार्ड्स और उसको पैसे मिले. तो उसको पूछा कि तुम कभी भागी नहीं थी तो तुमने ये सब कैसे किया, तुमको डर नहीं लगा. एंड हर एज वाज 65. माइंड में 65-year-old लेडी इन 9वारी साड़ी, लता भगवान करे. तो कहती मुझे एक ही लक्ष्य था कि मेरे पति की जान बचनी चाहिए. मेरे पास पैसे नहीं है, उसको वापस लेके जाने के लिए पैसे है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पैसे नहीं. सो शी रैन. सो इट वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस. तो क्राइसिस के वक्त देयर हैज बीन अ स्टडी, देखा गया कि कौन से लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो उन लोगों को हम कहते हैं हार्डी पर्सनालिटी, हार्डी, HARDY, हार्डी पर्सनालिटी, हु टेक द चैलेंज. तो पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू स्टे काम एंड प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम. काम डजंट मीन कि आप काम नहीं कर रहे हैं. काम मेंटली है, बट यू आर वर्किंग विद दैट कामनेस. नहीं तो काम धंधा छोड़ के जंगल में जाने वाले बहुत है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who are working in crisis or who have not given up in spite of the crisis. So first case study, मैं उसका फोटो दिखाना चाहता था, but somehow my PowerPoint is not getting shared. नहीं तो आपको उनका फोटो भी दिख सकता है. लता भगवान करे, शी इज 65-year-old लेडी. और मैं आगे की बात बताना चाहूंगा, ये 3 साल पहले की बात है. सरप्राइजिंगली अगेन, कितना ताकत होगा इस लेडी में. She is winning this marathon consistently since last 3 years. 3 साल से वो जीत रही है ये मैराथन. तो उसको पूछा, पहले बार तो पति की तबीयत खराब थी इसलिए आपने पार्टिसिपेट किया, अभी क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो उसने कहा मेरे को घर चाहिए, रहने के लिए घर नहीं है. सो लुक एट दिस फाइनेंशियल क्राइसिस. मुझे नहीं लगता है. सॉरी, someone said something. Hello, someone said something. Okay, so मैं ये केस आपको क्लासिकल डिस्क्राइब कर रहा हूँ. 65-year-old lady who is winning marathon without practice since last 3 years.
तो ये ताकत इस लेडी में कहाँ से आ गई? सो वी ऑल डॉक्टर्स नो दैट हम सबके अंदर रेजिडुअल कैपेसिटी, जैसे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ऑल ऑफ अस हैव दिस कैपेसिटी, इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, इसको जागरूक करना पड़ता है। अभी लकीली व्हेन सच सिचुएशन कम्स, तब ये जागरूक हो जाते कई लोगों की शक्ति। सो आई एम यूजिंग वन वर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। मुझे ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है कि when the situation comes or when the crisis is there, some people break down and some people break the records. In the face of a crisis, some people break down and some people break the record. अभी कौन से ग्रुप में आना है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना? और उसमें जो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, आई यूज द वर्ड हार्डी पर्सनालिटी। हार्डी या इसको दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सेकेंड वर्ड दे आर यूजिंग इज रेजिलियंट पर्सनालिटी। रेजिलियंट, आप में से किसने किसने विहासा का मॉड्यूल किया है? विहासा मॉड्यूल, एनीवन हैज डन इट? विहासा, I advise all of you to go through the Vyasa module, and the name of module, ये 8वां मॉड्यूल यूके ने ऐड किया। एक्चुअली Vyasa ये प्रोग्राम लंदन से है, इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम बट इट इज डन इन ग्रुप्स, 20 ग्रुप्स में होता है, ये 20 लोगों के ग्रुप में होता है। और उसमें 8वां मॉड्यूल ऐड किया ऑन रिक्वेस्ट, एंड द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस, अगर आपने शब्द सुना है, इफ यू हर्ड द वर्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक, एबिलिटी टू बाउंस बैक। एंड दीज आर द पीपल who not only survive but they thrive in the event of crisis. Crisis जब आता है, so these resilient people, they not only survive but they thrive on it. How many of you heard about the word we call adventure sports? Adventure sports सुना है आपने? सुना है? Adventure sports are those difficult sports जिसमें बहुत कम लोग भाग लेते हैं क्योंकि डर रहता है इंजरी होने का। जैसे राफ्टिंग है, राफ्टिंग आपने किया है, या स्काई डाइविंग या पैराशूट डाइविंग, ये सब क्लासिकल स्पोर्ट्स है जो आपके अंदर एड्रेनालिन रश को पैदा करते हैं। We all doctors are aware that whenever a situation comes, whenever situation, a difficult situation comes, हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है। हमको ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में या डॉक्टरी में पढ़ाया गया था, बीएमएस बीएचएमएस जो भी है। What was that? Walter Cannon response. आप सबने सुना होगा Walter Cannon response. That is fight and flight response. You must have heard about fight and flight response. Some people had heard of that is freeze response. Fight, flight and freeze response. ये हम सबके अंदर है, और इस रेस्पॉन्स को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इट्स अ इमरजेंसी रेस्पॉन्स। व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी, हमारी सिस्टम फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में जाती है, एंड दिस रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस फॉर द सिचुएशन। जब क्राइसिस आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हमको प्रिपेयर करती है, और क्राइसिस को मैनेज करने के बाद और बॉडी कम्स बैक टू द नॉर्मल। दिस रेस्पॉन्स इज देयर इनसाइड अस, हम सबके अंदर ये रेस्पॉन्स है। अभी हुआ क्या है, अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ये रेस्पॉन्स विच वाज एन इमरजेंसी रेस्पॉन्स इन सम इंडिविजुअल, इट इज कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, ट्रिगर हो रहा है, उसको ट्रिगर हो रहा है, और ये सेकंड नेचर बना हुआ है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ये रेस्पॉन्स हमको इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, वी हैव टू यूज इट ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट ये कंटिन्यूअसली दिस रेस्पॉन्स इज यूज्ड बाय आवर माइंड एंड बॉडी, and these people are suffering. So in crisis, the people who break the records, they have this response under their direct control. अभी इसको कंट्रोल कैसे करने का वो मैं आपको बताता हूँ, उसी के ऊपर आज का सेशन है। let me come to the straight away to the solution, how to control this response. So let me use very simple language. जैसे मैंने कहा कि हम कितना सुनते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम कितना प्रैक्टिस करते हैं।
इसी को आई विल यूज सम डिफरेंट वर्ड्स, क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये सब टेक्निकल वर्ड है। फॉर लेमैन, एक आम आदमी के लिए इसको इस तरह से हम समझा सकते हैं कि हम सबके अंदर दो चीजें हैं, एक्चुअली तीन चीजें हैं पर दो इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने गाड़ी चलाई है, आप में से कितने लोग ड्राइविंग करते हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन ड्राइव, बराबर है, कार चलाते हैं। पर अपनी कार को कैसा चलाते हैं मुझे नहीं पता, बट हम सब के अंदर तीन चीजें होते हैं। कार में एबीसी करके होता है, यू नो दैट एबीसी इन अ कार, एक्सिलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो ये एक्सिलरेटर एंड ब्रेक, these are very important things in our mind also. Accelerator is like a mind और brake is intellect. अभी हो क्या रहा है कि जो लोग क्राइसिस के वक्त शांत नहीं रह पाते हैं, शांत नहीं रह पाते in stressful situation, their accelerator is working, they are pumping too much cortisol and adrenaline in their system. आप सोचो कि कार के केवल एक्सीलरेटर पे पैर है, ब्रेक नहीं लगा रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक्सीलरेटर की कोई गलती नहीं है, एक्सीलरेटर का यूज है स्पीड बढ़ाने के लिए। कई बार हमको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है तो एक्सीलरेटर जरूरी है, पर एक्सीलरेटर के साथ अगर ब्रेक नहीं है then there are accident possible. अभी हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और प्रोफेशनल जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनका एक बहुत फेवरेट कोट मैं आपको बता रहा हूँ और आप सब इसके साथ एग्री करेंगे। तो मला ते म्हणतात मराठीमध्ये, व्हॉट दे से इन मराठी, की डॉक्टर साहेब आम्हाला सगळं कळतं हो, कळतं पण वळत नाही, कळतं की एवढा विचार नाही केला पाहिजे, कळतं की शांत राहायला पाहिजे, आय शुड नॉट रिॲक्ट, हे सगळं कळतं पण वळत नाही। इट मीन्स दे हैव नॉलेज कि उनका केवल एक्सीलरेटर काम कर रहा है, ब्रेक नहीं काम कर रहा है। आर यू देयर? और यही पे ये सेशन आ रहा है कि मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि ये ब्रेक को कैसे यूज करने का पावरफुली। दूसरा मेरे को क्वेरी आते हैं जब वो मेडिटेशन करने बैठते कि डॉक्टर साहब हम कोशिश बहुत करते हैं पर मेरा मन शांत नहीं होता है, वो भागता रहता है। आई एक्सेप्ट दैट 100%, भागता रहता है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट। पर मैं आ रहा हूँ सिंपल टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ जिससे हम शुरुआत करें। सरप्राइजिंगली, जैसे हमारे मेडिसिन में बहुत सारे मेडिसिन आर वेरी चीप एंड दे गिव गुड रिजल्ट, सिमिलरली यहाँ पर भी देयर आर सिंपल टेक्निक्स, इफ यूज प्रॉपरली इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट। और एक सिंपल टेक्निक है जो आपको किसी भी क्राइसिस में शांत कर सकती है इंस्टेंटली, अगर उस समय मोमेंट में आपको शांत रहना है। सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले या पैनिक केसेस आते हैं जिसमें बहुत डरे हुए रहते हैं और कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स रहते हैं, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया होता है सुसाइड का। तो मैंने क्या देखा है कि पीपल अंडर द इफेक्ट ऑफ समथिंग, और वी कॉल इन इंग्लिश द हीट ऑफ द मोमेंट, ऐसा डिसीजन लेते हैं जो लेना नहीं चाहते। जस्ट बिकॉज दे आर टेम्पररली अपसेट दे टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ, वो एक्सट्रीम सोचते हैं उस समय। वी कॉल इन साइकोलॉजी कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, ऐसे लोगों की होती है। तो उनको अगर शांत करना है, आपको भी शांत करना है, तो एक टेक्निक जो स्पोर्ट्समैन सभी इस्तेमाल करते हैं, सभी स्पोर्ट्समैन को ये सिखाया जाता है। 100 मीटर डैश होती है, फाइनल होती है, या क्रिकेट में लास्ट ओवर मैच होती है, उस समय वी कॉल, जैसे सचिन तेंदुलकर सिंड्रोम या नर्वस 99 सिंड्रोम है ना, उस समय स्ट्रेस आता है और सबको आता है। तो उस समय शांत होने का एक फास्ट तरीका है योर ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग एंड थॉट्स आर क्लोजली रिलेटेड। आपका अगर ब्रीदिंग डीप है और स्लो है तो आपके थॉट्स फास्ट नहीं चल सकते, इट इज इम्पॉसिबल, बोथ ऑफ देम डोंट गो टुगेदर। और ये देखा गया है, देयर आर स्टडीज विच शोज दैट डीप ब्रीदिंग activates our parasympathetic system. Please understand, sympathetic is accelerator, parasympathetic is brake. Sympathetic क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, यहाँ पे सब फास्ट करेगा, और parasympathetic स्लो करता है।
Now, deep breathing has shown scientifically to activate your parasympathetic system. That is your break, that is your relaxation. और मैंने पहले ही ओपनिंग में बोला था, जहां रिलैक्सेशन है वहां टेंशन नहीं रह सकता. Both of them don't go together, relaxation and tension. So ऐसे समय पर a quick way to stay focused or to stay calm or to reduce the flow of the thought, the fast running mind, a quick way, very quick way is to do deep breathing. अभी इसके ऊपर डॉक्टर एंड्रू वेल्स करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी किया और उन्होंने इसको नाम भी दिया है. बहुत अच्छा उन्होंने कहा, विद प्रैक्टिस आप इसको बढ़ा सकते हैं. ही कॉल्ड इट 4-3-7 breathing. 4-3-7. Remember these numbers 4, 3, and 7. This technique 4-3-7 is known to reduce you fast in relaxation mode. Take you to the relaxation mode very fast. 4 क्या है, 3 क्या और 7 क्या है? 4 is inspiration. You take inspiration while counting 1 to 4. Just like I am doing it, I am demonstrating it. 1, 2, 3, 4. So I am breathing when I am saying 1, 2, 3, 4. Then hold. Hold for 3 seconds or 3 counts. You can say 1, 2, 3. And then release your breath for count of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. So this 4, 3, and 7, this breathing technique will take you instantly into relaxation mode or parasympathetic activation, and you will feel the difference. Actually, I give a demo. Can we practice it for 1 minute? And you can feel the difference. Allow yourself, sit comfortably. सीधा बैठेंगे. Take deep breath. Take deep breath. And count 1, 2, 3, 4. Hold it for 3. 1, 2, 3. Now release with 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sham. Again. 1, 2, 3, 4. Hold it. 1, 2, 3. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Down. Immediate your parasympathetic is activated, you can feel the difference. This is how you relax your adrenal gland, which is pushing continuously adrenaline and cortisol in the system. और ये किसको करना चाहिए? जिनको बार बार डर लगता है. There are people who are conscious all the anxious all the time, जिनको हमेशा डर लगा रहता है, या especially in such situation, this is the fastest way to relax. तो ये टेक्निक आपको बहुत मदद करेगा. Let me share with you a second story of crisis. एक तो हमने फाइनेंशियल देखा, दूसरा हम हेल्थ का देखेंगे. Again, I am taking an example of a female who has survived the cancer. I don't know, you must have heard this famous lady, and she became the most famous metaphysical teacher of the world in 2090s. Her name is Louise Hay. I don't know how many of you have heard about Louise Hay. Louise Hay, उसका बहुत traumatic childhood रहा. She had child out of marriage, but before marriage, then she had so many things which happened with her, because of which she developed cervical cancer, cancer of the cervix. And doctor say आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, and she was not in favor of operation. तो डॉक्टर ने कहा अगर ऑपरेशन नहीं किया तो कैंसर फैल जाएगा and there is a risk to your life. But she was very confident about her method. She did some dietary changes.
some healing exercises and forgiveness as a therapy. And she, as per her, she has cured her cancer without any operation. And this Louis Hay has written an international bestseller book. I recommend all the doctors to read her book. And the name of her book is You Can Heal Your Life by Louis Hay. And सबसे अच्छी बात इस किताब की ये है कि this is the only book available in the market in which she has given a thought of every disease and the thought which cures the disease. So crisis में as per her जो thought चलते हैं हमारे thought, these thoughts are the problems. And this is not even her words. Dr. अगर आपने मैनेजमेंट गुरु स्टीवन कोवे का नाम सुना है, स्टीवन कोवे, who has written 7 Habits of Highly Effective People और First Thing First, these are international bestsellers. तो उन्होंने भी कहा it is the thought which is a problem. If you are able to change your thoughts, you can reduce the crisis, at least minimize the effects of the crisis. तो thoughts कौन से हमको मदद करते हैं ऐसे situation में? When crisis आती है, तो many people they are usually generating negative thoughts. तो कौन से थॉट्स है जो हमको क्राइसिस को वक्त शांत हो करने में मदद करेंगे? वो थॉट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. बिकॉज इफ यू प्रैक्टिस दिस थॉट्स you can reduce the effect of crisis on you or your decision making. Again, giving an example, and this time I am giving example of Arunima Sinha. Again, but I don't know, I got only Arunima Sinha. I don't know how many of you heard about Arunima Sinha. तुम्हारे बैक से थल्ले पकड़ ली. इसका आवाज है ये? Sorry, someone is sharing. Arunima Sinha, she was a volleyball player. She was traveling in a train. और कुछ गुंडों ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की, so she objected. तो गुंडों ने क्या किया रहेगा? What these hooligans did? Arunima Sinha, वॉलीबॉल प्लेयर को चलती ट्रेन में से फेंक दिया. She was thrown out of a running train and she was on railway track whole night. ये रात को हुआ तो किसी को पता नहीं. She was unconscious on the ट्रैक के बीच में और दोनों तरफ से ट्रेनें आ जा रही है. रात को कम से कम 52 trains went by and what happened, surprisingly उसके पैर के ऊपर से गाड़ी गई थी, so उसके दोनों पैर कट गए थे. And the rats, जो चूहे होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो उसके पैर को खा रहे थे और उसको अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल में ऑफकोर्स उसकी सर्जरी हुई और उसको बिलोनी एम्पुटेशन हुआ. उसके दोनों पैर काट दिए गए. उसके दोनों पैर काट दिए गए. बट यू नो दिस इज अ क्राइसिस. आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ छेड़छाड़ किया गया. यू ऑब्जेक्टेड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, पर आपको चलती ट्रेन में से फेंका गया. ट्रेन की पटरी आपके पैर के ऊपर से गई, आपके दोनों पैर कटे हुए हैं एंड यू आर अ स्पोर्ट्समैन. इमेजिन द क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल स्पोर्ट्समैन. और जब उसको कॉन्शियसनेस आया, वो होश आया, उसने देखा दोनों पैर कट गए. फर्स्ट थॉट, थैंक यू गॉड, तूने मुझे बचाया. जरूर तू मेरे द्वारा कुछ ऐसा करना चाहता है जो आज तक किसी ने नहीं किया. Imagine the amount of positivity this lady must be having. This is a crisis in her life. क्योंकि उसका पूरा करियर वॉलीबॉल प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, पैर कट गए हैं. पर उसका okay. तो उसका पूरा करियर पैर के ऊपर है और उसका फर्स्ट थॉट है थैंक यू गॉड, तूने मुझे बचाया. जरूर तू मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है. यू नो व्हाट शी डिड? हाउ मेनी ऑफ यू नो अरुणिमा सिन्हा? अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया उस हालत में? शी डिसाइडेड कि वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ेगी. एवरेस्ट, इमेजिन दोनों पैर कटे हुए हैं. शी वेंट टू द कैंप और उसने कहा कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है. तो जिसको उसने अप्रोच किया,
उसने एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, उसने कहा तू तो एवरेस्ट ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, सिर्फ अभी डेट डिक्लेयर होना बाकी है। विथ आर्टिफिशियल लिम्ब, उसके दोनों पैर कट चुके हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ अरुणिमा सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन हैंडीकैप, हैंडीकैप शब्द अच्छा नहीं है, दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट को सर किया। अभी आप मुझे बताओ 99% लोग ऐसे सिचुएशन में क्या सोचते, क्या सोचते? हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान मैंने किसका बुरा नहीं किया था, मैंने तो सभी के साथ अच्छा किया था, मैंने ऐसा क्या किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ अ पीपल। यस, ये फोटो किसने डाला? आई थिंक डॉक्टर साहब बहुत एक्टिव है। शी इज अरुणिमा सिन्हा एंड दिस इज हर फोटो। आई डोंट नो यू आर एबल टू सी दिस, आप देख पा रहे हैं फोटो? Yes. Yes, sir. Everyone you can see. हाँ, दिस इज अरुणिमा सिन्हा जो, और उसका एक्सपीरियंस आप खुद सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत हॉरिबल है। लास्ट में पहुंचने के थोड़ा देर पहले उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था, उसके साथ एक शेरपा था, उस शेरपा ने कहा मैडम आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, हम ऊपर नहीं जा सकते, और वो कह रहा था यहाँ तक पहुंच गए, बहुत बड़ा काम किया, हम वापिस चलते हैं। पर अरुणिमा सिन्हा ने कहा नहीं, मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं ऊपर जाऊंगी, नजदीक है। उसने कहा मैडम हम सरवाइव नहीं हो पाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, बट शी वाज परसिस्टेंट एंड दिस इज व्हाट द पीपल हु हैव दिस हार्डी पर्सनालिटी। हार्डी पर्सनालिटी माना रेजिलिएंट पर्सनालिटी। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या हुआ रहेगा, इन इंग्लिश दे से कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहते हैं। क्या हुआ रहेगा, कैन एनीवन गेस? किसी ने सुना है उसकी कहानी? यू नो मिरेकल ऐसे समय पर होते हैं। वो गई ऊपर शेरपा को लेके और देखा कि वहां 2 डेड बॉडी पड़ी थी और डेड बॉडी के ऑक्सीजन सिलेंडर थे। शी यूज्ड दोस ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड शी रीच्ड द पीक। सो दिस इज वेरी हम क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा। और अभी उसका थॉट है कि वर्ल्ड के जितने भी पीक है सबके ऊपर वो चढ़ने वाली है विथ हैंडीकैप, मतलब सो कॉल्ड बिलो नी एम्पुटेशन। आप सोचो, अभी आप मुझे बताओ, जिसको काम रहना है और प्रोडक्टिव रहना है उसका थॉट इज इंपॉर्टेंट। आर यू देयर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? There are people who have produced result in spite of the crisis. तो मैंने 2 प्रकार के लोग देखे हैं मेरे पास जो आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, नंबर 1, इधर दे आर इन रिएक्टिव मोड। रिएक्टिव माना फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स, और उसके साथ फिर वो क्या करते, ब्लेम करते हैं। किसको ब्लेम करेंगे? या तो अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि मेरा नसीब ही ऐसा है, या दूसरों को ब्लेम करते कि मुझे लोग ही ऐसे मिले, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसा है, घर में सभी ठीक है तो पड़ोसी ही ऐसा है, पड़ोसी भी अच्छा निकला तो आपके एरिया का कॉर्पोरेटर ही ऐसा है, या गवर्नमेंट ही ऐसी है। These people they suffer a lot because you do not have control about what is happening outside. तो मैं आपको तीसरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्राइसिस के वक्त शांत रहने के लिए, which is also very famous. And we call it, there is a prayer, serenity prayer in English. They say, God, give me the courage to change the things which I can change. And give me the serenity to accept the things which I cannot change. And give me the wisdom to know the difference. तो जो हमारे कंट्रोल में है क्राइसिस के वक्त, आपके कंट्रोल में है, वो करना चालू कर देना चाहिए। प्लीज रिमेम्बर दिस, क्राइसिस के वक्त आपके कंट्रोल में जो चीज है उसको करना चालू करो। यूजुअली क्या होता है, पीपल गेट पैरालाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस, देयर थिंकिंग इज ब्लॉक और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव थिंकिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। ये सब सक्सेस स्टोरीज जो मैं बता रही हूँ, लता भगवान करे 65 साल की औरत नौवारी पहनने वाली, या अरुणिमा सिन्हा, या फिर लुई हे, इनके कंट्रोल में क्या था वो उन्होंने किया। और इनके कंट्रोल में क्या था, खुद को बदलना, खुद को पॉजिटिव रखना,
खुद को काम रिलैक्स रखना, वो उन्होंने किया है. दे क्यू टर्न आउट एज अ हीरो. So remember the quotation, in the event of crisis, some people break down and some people break the record. मैं भी छोड़ सकता था, देखो मुझे वैक्सीन नहीं मिल रहा है, क्या करने का जॉब, जान बची लाखों पाए, छोड़ दो सब कुछ और मैं जा सकता था. नो, आई हैव नॉट गिवन अप. मैंने छोड़ा नहीं, मैं कोशिश करता रहा. देयर आर 3 हॉस्पिटल्स. पहले में गया 7 हिल हॉस्पिटल अंधेरी. इसे सुपर स्पेशलिटी. बीइंग अ डॉक्टर प्रिविलेज है. मैं डिस्कस किया, सर दे दो, कुछ नहीं होता है, जो होगा देगा. नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते. दे फ्लैटली रिफ्यूज. कहते हम दे ही नहीं सकते, इट्स अ प्रोटोकॉल. तो वहां से गया. फिर मुंबई में घाटकोपर में राजावाड़ी हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल में गया, वहां पर भी पहचान है मेरी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई वॉज यूजिंग माई इन्फ्लुएंस कि आई एम अ डॉक्टर, आई नो इट, प्लीज गिव मी. दे वर रिफ्यूजिंग. नहीं सर, हम आपको नहीं दे सकते, यू आर अ केस ऑफ एंजियोइडिमा. और मेरे से झूठ भी नहीं बोला जा रहा है. सी, दैट इज आल्सो माय प्रॉब्लम. आई कुड हैव लाइड कि मुझे कुछ नहीं, आप दे दो करके. सो आई नेवर लाइड. I stated the truth, but they were not giving me vaccine. But I was consistent. मुझे वैक्सीन लेना है. अभी there were only 2 vaccine. So I was persistent. Then I went to JJ. वहां पर भी मुझे रिफ्यूज किया गया कि सर आपको एंजियोइडिमा है, हम नहीं दे सकते. Then I was thinking कि क्या किया जा सकता है. फिर मैंने पूछा, सर कौन सा तरीका है, आप ही बताओ मुझे वैक्सीन कैसे मिलेगा, बिकॉज आई एम वर्किंग विद पेशेंट्स. दे सेड और एक तरीका है कि तुम कंसेंट दे दो, है ना. दिस इज व्हाट वी कॉल गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु वांट्स टू हेल्प देमसेल्व्स. उनका इंटेंशन अच्छा है, हमारा इंटेंशन अच्छा है कि लोगों की मदद करना है, मुझे काम करना है पेशेंट के साथ में. आई हैव टू गिव देम रिलीफ. तो मुझे वैक्सीन मिल गए कंसेंट के. ऑफ कोर्स आई टुक अ रिस्क, इट वाज अ रिस्क. अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन उस समय हो सकता है मेरे को कुछ भी हो सकता था. बट आई टुक अ रिस्क. व्हाई द रिस्क? वी कॉल दिस कैलकुलेटेड रिस्क. सो इन द इवेंट ऑफ क्राइसिस आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है. कैलकुलेटेड माना आपको पता होना चाहिए कि समझो अगर रिएक्शन आया तो स्टीरॉइड है, एफकॉर्लिन है, एड्रेनालिन है, एंड टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर देयर हु कैन टेक केयर ऑफ इट. So it was a calculated risk. Let me share one more story. आपने डॉक्टर बीसी गोयल का नाम सुना है किसी ने? डॉक्टर गोयल, जयप्रकाश नारायण का नाम तो आपने सुना होगा. दैट टाइम एक ड्रग आया था कार्डियोलॉजी में, नया ड्रग था कॉर्डेरॉन आईवी एरिथमिया के लिए. एंड बीसी गोयल ओवरनाइट फेमस हो गए क्योंकि उसने डेयरिंग किया और ये ड्रग दे दिया. वेरी फेमस लीडर को ड्रग दिया और वो लीडर ठीक हो गया. एंड बीसी गोयल. सो यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, बट दे हैव टू बी कैलकुलेटेड रिस्क. मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइसिस के वक्त कौन से लोग शांत रह पाते हैं. तो मैंने 3 चीजें आपको बताई और मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसका नाम है हार्डी पर्सनालिटी. हार्डी पर्सनालिटी और रेजिलिएंट पर्सनालिटी. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड रेजिलिएंट. रेजिलिएंट शब्द को आप ध्यान में रखो. रेजिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू बाउंस बैक. एबिलिटी टू बाउंस बैक. मराठीमध्ये आपण म्हणतो ते गवताचं पातं असतं ना, पातं, गवताचं पातं. जेव्हा तुफान येतं त्यावेळेला काय होतं, मोठी मोठी झाडं तुटून पडतात, पण गवताचं पातं काय होतं, इट बेंड्स अँड इट बाउन्स बॅक. इट बेंड्स, इट बाउन्स बॅक, इट डझंट ब्रेक. त्यामुळे क्रायसिसच्या वेळेला तुटायचं नसतं, वाकायचं असतं आणि परत यायचं असतं. मी नेहमी महाराष्ट्रातल्या लोकांना सांगतो, कारण मराठीमध्ये आपले मराठी क्राऊड आहे, मला हे अजिबात वाक्य आवडत नाही. मराठी लोकांसाठी म्हटलं जातं की मोडेन पण वाकणार नाही. हॅव यू हर्ड दिस सेइंग? मोडेन पण वाकणार नाही. मला वाटतं आपण ही म्हण बदलली पाहिजे. आपण त्यापेक्षा असं म्हटलं पाहिजे, वाकेन पण मोडणार नाही. मोडून फायदा काय तुमचा? हो, यू शुड नो हाऊ टू बेंड ॲट द राईट मोमेंट अँड बाउन्स बॅक. आणि दुसरी एक म्हण आहे जी मला नेहमी ऐकवली जाते. वेन पीपल कम टू मी, माझ्याकडे काउन्सिलिंग साठी येतात, नवरा बायको पण येतात, आई वडील आणि मुलं येतात, कलिग्स येतात, कंपनीत काम करणारे, आणि मला ते नेहमी म्हणतात की डॉक्टर साहेब तुम्हाला माहिती आहे स्वभावाला औषध नाही. स्वभावच तसा आहे त्यांचा, स्वभावाला औषध नाही, हा माणूस असाच राहणार आहे. आय वॉन्ट दिस सेइंग ऑल्सो टू बी चेंज. ही सेइंग पण आपल्याला बदलली पाहिजे. तुम्ही आजपासून अजिबात असं बोलायचं नाही स्वभावाला औषध नाही. उलट असं बोलायचं, स्वभावाला औषध आहे ते फक्त रोज घ्यायचं असतं. स्वभावाला औषध आहे ते रोज घ्यायचं असतं. ही पूर्ण कविता आहे.
तर तुम्ही कविता वाचू शकता, तुम्हाला नेटवर मिळेल. स्वभावाला औषध आहे. यू कॅन चेंज युअर हॅबिट. I know it is tough. See, having given you all of this example, I'm not saying that staying calm in a crisis is easy. No, it is not easy. मी लास्ट एक पॉइंट सांगून I would like to ask, get the questions. तुमच्यापैकी मॉक ड्रिल मध्ये कोणी पार्टिसिपेट केलंय? मॉक ड्रिल ऑफ इमर्जन्सी. हॅज एनीवन पार्टिसिपेटेड? एअरपोर्ट या फायरची ट्रेनिंग घेताना मॉक ड्रिल असते, यु नो. अच्छा, सो मॉक ड्रिल का केली जाते? इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर जेव्हा टेररिस्ट अटॅक झालं तर काय करायचं, किंवा कुठे बिल्डिंग मध्ये आग लागली तर काय करायचं, तर ह्याची मॉक ड्रिल घेतली जाते. मॉक ड्रिल म्हणजे तशीच परिस्थिती उद्भवली असं समजून सगळ्या लोकांनी रोल प्ले करायचा. कम्युनिकेशन कसं ठेवायचं, कुठून पळायचं, काय करायचं, ह्याला आम्ही म्हणतो मॉक ड्रिल, किंवा ह्याला आम्ही म्हणतो रिहर्सल ऑफ द ऍक्च्युअल इमर्जन्सी. तर ह्या मॉक ड्रिलचा फायदा असा असतो की आपण पहिलेच प्रिपेअर राहतो. अँड क्रायसिसला मॅनेज करण्यासाठी प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ. सो हार्डी पर्सनॅलिटीच्या 3 विशेषता मी तुम्हाला सांगतो आणि थांबतो. देर आर 3 थिंग्स अँड वी कॉल इट एस पर्सनॅलिटी. एस, ACE. Hardy personality are having ace in them. Ace for what? A for something, C for something, and E for something. A म्हणजे काय? तुम्ही जर रस्त्यावर कुठे गेला असाल, ट्रॅव्हलिंग केले असेल, मी 25 वर्ष पूर्ण भारतात फिरलेलो आहे, बाय रोड, फ्लाईट अँड ट्रेन. त्यामुळे भरपूर ठिकाणी भरपूर काही अनुभव आले, पण मेजॉरिटी रोडवर मी एक बोर्ड वाचतो. इट स्टार्ट्स विथ A and that sentence is very powerful. And the sentence is like this: always alert avoids accident. Have you heard this? Always alert avoids accidents. जे लोक नेहमी अलर्ट असतात ते ऍक्सिडेंट अवॉइड करतात. In English we say stitch in time saves 9. So if you are aware all the time, there is something known as SRA, spontaneous right action येते तुमच्यामधून. You know intuitively की तुम्हाला या वेळेला काय केलं पाहिजे. I know all the gynecologists, obstetrician, they work on hunches or intuition. या वेळेला असं केलं पाहिजे, या वेळेला हे होऊ शकतं. Many surgeons have these beautiful experiences. So alert राहिलं पाहिजे, aware. And these people have that number 1 alert. Number 2, A for their attitude is always positive towards the situation. Second A is attitude. They carry this attitude which is always positive. And third, C for, मैंने अगोदर पण तुम्हाला सांगितलं, C for they take situation as a challenge. जेव्हा तुम्ही सिच्युएशन एज अ चॅलेंज घेता तेव्हा तुमची कोपिंग कॅपॅसिटी वाढते. तुम्ही जर अगोदरच हार मानली तर तुमची शक्ती खतम होणार. Some people break down and some people break records. Is based on if you take it as a challenge म्हणून घेतात. And second thing is they are very good at communicating with themselves and their team members in a crisis. Communication strong पाहिजे तुमचं. मी पुन्हा सांगतो, क्रायसिसच्या वेळेला व्हॉट इज युअर सेल्फ टॉक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही स्वतःशी काय बोलता कंटिन्युअसली, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड वन थॉट विच विल हेल्प देम, C for can do attitude. I can do it. I can handle the situation. My thoughts are under my control. हा पुन्हा पुन्हा आपल्या आतमध्ये हे चालत राहिलं पाहिजे. I can do it. I can handle it. I can handle it. I can do it. My emotions are under my control. And E for, I would put it emotional intelligence. Most important, they have mastery over their emotions. Last जाण्यापूर्वी मी एक सेंटेन्स बोलतो की calm is a feeling. Calmness is a feeling. So there is a heart and there is a head. So we call head and heart. जे लोक म्हणतात क्रायसिसच्या वेळेला मी शांत नाही राहू शकत, इट इज द फीलिंग विच टेक्स ओव्हर द रिझनिंग. इट इज द फीलिंग विच टेक्स ओव्हर द रिझनिंग. सो फेमस कोटेशन आहे जे मी सांगू इच्छितो. पीपल से पीपल फॉल इन लव्ह
मला अजूनपर्यंत कळलं नाही की पीपल फॉल इन लव्ह. वाय दे पीपल फॉल इन लव्ह? लव्ह इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग, पॉझिटिव्ह इमोशन. यू मस्ट राईज इन लव्ह. बट वाय पीपल फॉल? एकदा कॉलेजमध्ये एका मुलाने उत्तर दिलं, सर पीपल फॉल इन लव्ह बिकॉज लव्ह इज ब्लाइंड. आणि मला ते आवडलं. लव्ह इज ब्लाइंड, दॅट्स वाय पीपल फॉल. सो वेन यू आर ब्लाइंड, यू आर बाउंड टू फॉल. So only emotions take over the reasoning. When emotions take over the reasoning, you are not logical in the moment and your decisions can go wrong. माझ्याकडे जेवढे हस्बंड वाईफची भांडणं येतात, आय एम सॉरी, इथे नसावीत असं मी गृहीत धरून चालतो. लोक का हसतायत मला माहित नाही, पण माझ्याकडे जेवढं भांडणं येतात त्याच्यामध्ये मी बघितलं तर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द टोन ऑफ द व्हॉइस. टोन ऑफ द व्हॉइस. जरी तुम्ही टोन तुमचा कंट्रोल मध्ये ठेवला, टोन, तुम्ही बोलायचंय आपल्या भावना. तुम्ही अजिबात मला मदत करत नाही, मी ड्युटीवरून येते, घरी आल्यावर मला सगळं काम करावं लागतं, तुम्ही आरामशीर बसून असता, हे सगळं तुम्ही बोलायचंय, फक्त टोनला कंट्रोल मध्ये ठेवा. सो इमोशन्स दे टेक ओव्हर द रिझनिंग. कारण जेव्हा हे हार्ट इमोशन फास्ट चालतात ना, वी कॉल इट एनर्जी इन मोशन. इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. यू कॅनॉट रिमेन काम आणि तुमचं डिसिजन अफेक्ट होतं अँड यू आर बाउंड टू टेक रॉंग डिसिजन्स अँड इट कॅन अफेक्ट द आउटकम ऑफ द क्रायसिस. सो मी मेडिटेशन सोडून सगळ्या गोष्टीवर बोललेलो आहे बिकॉज मला वाटतं की तुम्ही मेडिटेशन करत असावे किंवा केलं पाहिजे. पण मेडिटेशन मध्ये हे सगळं येतं जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, डीप ब्रीदिंग, पॉझिटिव्ह थिंकिंग किंवा इमोशनल इंटेलिजन्स, हे सगळं मेडिटेशन मध्ये ऑटोमॅटिकली समावलेलं आहे. फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची आहे. ती माझा अनुभव सांगतो मी. 6:07 झालेले, 1 मिनिट घेतो मी. मी आता 12 तास काम करतो मी. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, एव्हरी डे सिन्स लास्ट 8 months, including Sunday also I am working. I have not taken a single holiday. Of course I am bachelor, पण मी माझं जेवण पण स्वतःच बनवतो. मी कोणाच्या हातचं जेवत नाही, माझं जेवण स्वतः बनवतो. सकाळी उठून आम्ही अमृतवेला मेडिटेशन करतो 3:30ला, जेवण बनवतो, मेडिटेशन करतो. आय टेक रेस्ट, बट देन आय वर्क फ्रॉम 10 to night 10. It's a 12-hour job. But still I am energetic. I am very peaceful. Of course there are challenges, but still I can handle the challenge. प्रत्येक वेळेला शांत राहणं दरकार. आय हॅव टू थिंक फॉर सोल्युशन. मला सोल्युशन वर विचार करायचा आहे कंटिन्युअसली. इट इज नॉट अन आयडल लाईफ, इट इज अन ऍक्टिव्ह लाईफ. सो काम इन क्रायसिस इज पॉसिबल provided you follow the things which I have shared with you. Number 1, take every situation as a challenge. Be positive no matter what. Look on the brighter side of the light. Do practice deep breathing, deep breathing. Practice deep breathing and just talk to yourself. Yes, I can do it. I can remain calm. I can remain calm. And if you are practicing meditation, which I practice, it is your choice. मी काय करतो, दर तासाला 1 मिनिटासाठी दिवसभरामध्ये, कारण वी ऑल्सो गेट टायर्ड. शरीर आहे म्हटलं की शरीराचे लिमिटेशन आहे. पाय दुखतात, अंग दुखतं जेव्हा झोप झालेली नसते तेव्हा. फक्त डाएट वर कंट्रोल आहे माझा ऍब्सोल्यूट. 2 भाकरी फक्त खातो, सकाळी 1 आणि संध्याकाळी 1. मध्ये काही नाही, पाणी पितो. आय मेंटेन हायड्रेशन. बट शरीर थकतं, हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. जेव्हा शरीर थकतं ना, आपली एनर्जी डाऊन होते. मग त्या वेळेला हे मी मेडिटेशन करतो. आय अगेन बाउन्स बॅक. म्हणजे मी पुन्हा बाउन्स बॅक होतो. आणि ते मेडिटेशन आहे, आय फोकस इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. मी शरीरापासून डिटॅच होतो. आय डिटॅच मायसेल्फ, फोकस हिअर and visualize myself as a brilliant point of light. I am a peaceful being of light and child of Almighty. हे visualization मी करतो. This is visualization exercise and I receive the light from Almighty. आणि ते आतमध्ये गेल्यावर something happens ज्याला आम्ही म्हणतो की मला असं वाटतं की बॅटरी चार्ज झालेली आहे आणि ती चार्ज बॅटरी 1 तास चालते. 1 तासानंतर परत डिस्चार्ज होते ती. परत मी चार्ज करतो. So this is how I try to maintain my calm state of mind. I try to maintain it. Sometimes it becomes very tough, especially जेव्हा झोप झालेली नसते. See, food is not a challenge for me. झोप is a challenge. झोप होत नाही. तर जेव्हा झोप होत नाही तेव्हा मी बघतो की नेक्स्ट डे माझ्यावर इफेक्ट येतो. बट दॅट टाइम आय रिअलाइज की मला जास्त मेडिटेशन केलं पाहिजे. बिकॉज मेडिटेशन स्लीप इज इक्विव्हॅलंट. सो येस,
I want to stop here. I want to tell you there are many people who are going through COVID crisis. तुम्हाला आकडे सांगितलं तर या वेळेला वर्ल्ड मध्ये as per WHO 1,15,000 healthcare practitioners have died. In India 650 doctor, nurses and healthcare workers have died because of COVID. Forget about the people who are suffering. They have lost their jobs and everything. That suffering is there. But 650 healthcare professionals have died. तर माझ्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा आहे. आपले शब्द आता असे असणार आहे, कोविड पूर्वी आणि कोविड नंतर, प्री कोविड अँड पोस्ट कोविड. दीज आर द एराज वी हॅव डिवाइडेड. अँड आय नो डॉक्टर्स जॉब इज व्हेरी टफ. Doctors are very good counselors because they are trained in managing emergencies, but at times they find it difficult to relax themselves. मी पुन्हा सांगतो, when you are able to relax yourself, then you can handle situation in a better way. All the benefits of meditation are because of relaxation. So thank you very much. I will stop here. If you have any questions, you can ask me. If you have any questions, you can ask me. मला ऐकायला येत नाही. तुमचा म्यूट आहे, माईक म्यूट आहे. Unmute yourself, ma'am. Yes. Sir, which kind of meditation practice you do? Raj Yoga or what? See, असं आहे, I stay in Brahma Kumari's garden only. ठीक आहे ना? So I am a security guard in the night. I look after Brahma Kumari's garden. So whenever I get up, I usually sleep by 11 or 11:30. So क्योंकि ड्यूटी पे से आने को 10:30 होते हैं. 10:30 बजे आने के बाद I freshen up. I remember God and sleep by 11 o'clock. So usually it depends. Usually 3:30 बजे हम उठते हैं. 3:30 बजे उठते हैं. Sometimes 2 o'clock also. It is not I who control. It is he controls. जब उसको कुछ काम कराना होता है ना, वो उठा देता है बराबर. He knows. He is controlling us. We surrender to him. I follow the principles of Bhagavad Gita. सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज. माना हम उसको सरेंडर कर देते. तेरा शरीर है, तू चला. तेरे को जैसी सेवा लेनी है तू ले. So sometimes 2 o'clock, sometimes 3:30, sometimes 4 o'clock. कई बार नींद नहीं आती because of various reasons. So I don't sleep till 12:31. तो उस समय मेडिटेशन करके ही मैं सोता हूँ because then I need to finish my quota of sleep. But usually it is 3:30 a.m. or 4 a.m. But then after doing that, I do exercise. I freshen up myself. I prepare my food and then I sleep. I sleep again for 1 or 2 hours. क्योंकि सुबह खाना बनाने में 1 घंटा तो जाता है मेरा full day का. So usually it is 3:30 a.m. or 4 a.m. But you should not do this. Please don't copy me. This is my warning. Don't do this. Don't do this. See, what I'm saying, as per your dincharya, as per your duty and healthy habits, आप जल्दी रात को सोने की कोशिश करो. ठीक है ना? जैसे आप रिलैक्स होने लगेंगे, with my experience, what I'm sharing, जितना आप दिन भर में रिलैक्स रहते हैं, उतना आपकी रात की नींद का कोटा कम होने लगता है. Are you there? Yes, sir. Your requirement of sleep in adult age is 6 hours. But जितना आप दिन भर में tiredness, आपका relaxation, उस अनुसार आपकी नींद है. So you manage as per your routine. आप जब भी सुबह उठो फ्रेश होके तभी आप मेडिटेशन में बैठो. बेस्ट टाइम इज 4 a.m. पर अगर 4 बजे नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप उठो तभी आप फ्रेश होके सुबह सुबह प्रोग्रामिंग दो. Amazing. Amazing. Very That nice. is what I have learned. Very nice, sir. Okay, any other questions? सगळे शांत झाले तसं मला दिसतं. सर ओम शांती. ओम शांती बोला. सर आपण भगवद्गीतेतून कोणती पंचलाईन कॅन बी टेकन फॉर बीइंग काम इन क्रायसिस? एकच माझा फेवरेट श्लोक आहे. तसे तर 200 श्लोक माझे पाठ आहेत भगवद्गीतेचे, जे मी रिवाइज करत असतो मध्ये मध्ये. भगवद्गीता इज टू बी लिव्ड.
पण एक श्लोक जो मला फार मदत करतो भगवद्गीता, एक नाही 2 श्लोक आहेत. एक 9वा अध्याय जे तुम्ही महाराष्ट्रातले आहात तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी जेव्हा संजीवन समाधी घेतली तर असं म्हणतात की त्यावेळेला हा 9वा अध्याय जो आहे राजविद्या राज गुह्य योग तो म्हणत असताना ते समाधीमध्ये गेले आणि त्या 9व्या अध्यायातला 22वा श्लोक आहे. तो 22वा श्लोक मला शांत करतो. because I had certain challenges which are made by आणि ते हे श्लोक तुम्ही ऐकला असेल, सगळ्यांनी ऐकलाय भारतामध्ये. तुम्ही जर LIC ओळखत असाल तर LIC ची एक पंचलाईन आहे. LIC ते असे 2 हात धरून ती ज्योती दाखवली आहे ना, त्याच्या खाली लिहिलेलं असतं तो श्लोक. त्या श्लोक मधलं एक वाक्य तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल ते. तो श्लोक असा आहे, अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तां योगक्षेमं वहाम्यहम्. तर ते LIC मध्ये योगक्षेमम वहाम्यम ते खाली लिहिलेलं असतं. हा संस्कृत श्लोक आहे. याचा अर्थ असा आहे, जो अनन्य भाव से अनन्य भाव फार महत्वाचा. अनन्य म्हणजे ज्याचा अन्य दूसरा कोणी नाही. जो अनन्य भाव से परमात्मा को याद करते हैं उनका योग और क्षेम. योग का और क्षेम, दोनों शब्दों का अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. योग माना जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, उसको योग कहते हैं. अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है. और क्षेम माना जो प्राप्त है उसको संभालना. तो योग और क्षेम ये दोनों परमात्मा संभाल लेता है. इन सिंपल लैंग्वेज, जब आप उसको दिल और दिमाग से पूरा अपना जीवन देते हैं तो वो आपकी पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है. ये इस श्लोक का अर्थ है. तो ये श्लोक मुझे बार बार शक्ति देता रहता है. अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते 9व्या अध्यायामध्ये 22वा श्लोक आहे. Any other question? Mona madam, you have unmuted your mic, so you want to ask any question? No, thank you. Okay. So thank you very much. Actually मला ते PowerPoint presentation डॉक्टरना द्यायला पाहिजे होतं. He could have shared with everyone. But ठीक आहे, whatever happens ultimately अच्छे के लिए होता है. मी पुन्हा सांगतो, तुम्हाला जर काही इश्यू असतील यू कॅन कॉल मी डायरेक्टली ऑन फोन. है ना, माझा फोन नंबर आहे. तुम्ही किंवा दुसऱ्यांना पण सांगू शकता. अँड मला असं वाटतं डॉक्टर्स खूप चांगली सेवा करतायत, मेजॉरिटी डॉक्टर्स. फक्त त्यांना आपली एनर्जी पॉझिटिव्ह ठेवली पाहिजे. डॉक्टर्स आर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड बर्नआउट. कारण डॉक्टरची झोप पूर्ण होत नाही आणि फिमेल डॉक्टर्स असेल तर त्यांना घर आणि लाईफ याचं प्रोफेशनल लाईफ बॅलन्स ठेवणं फार गरजेचं असतं. आपली सगळ्यांची एनर्जी फ्लक्च्युएट होत राहते दिवसभरामध्ये. तर तुम्ही तुमची एनर्जी पॉझिटिव्ह ठेवा, जेवढी पॉझिटिव्ह ठेवता. आणि पॉझिटिव्ह ठेवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं युअर डाएट, युअर स्लीप, युअर एक्सरसाइज अँड मेडिटेशन. या 4 गोष्टी तुम्हाला पॉझिटिव्ह ठेवतील आणि हळूहळू अभ्यासाने आपण आपलं मन शांत ठेवू शकतो. इट इज नॉट इझी बट विथ प्रॅक्टिस यू कॅन कीप इट, यू कॅन डू इट. If there are no questions, then I would like to say something. या प्लीज. Yeah. एक मिनिट जागृती. हा मॅडम. असं क्रायसिस मध्येच आपण काम राहिलं पाहिजे, ठीक आहे. पण मला असं वाटतं कधी कधी ज्या डेली ऍक्टिव्हिटीज असतात, आमचं जे रोजचं असतं, तर तिथे पण आमचा बरेचदा तोल जातो. म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये असू द्या किंवा घरी असू द्या, तर ते कसं अवॉइड करायला पाहिजे. कारण क्रायसिस काही नेहमी येत नाही, पण ह्या रोजच्या ज्या दैनंदिन गोष्टी, तर इथे बरेचदा घडून आणि छोट्या छोट्या गोष्टीतून मग मोठी गोष्ट होत जाते. तर हे कसं आपण एक्झॅक्टली, खूप छान बोललात तुम्ही. तुमच्या बोलण्याचा भाव असा आहे की एव्हरीडे लिव्हिंग इज अ क्रायसिस. रोजचं जगणं पण क्रायसिसच आहे, सकाळपासून रात्रीपर्यंत. मला ना भरपूर लोक येतात लेक्चर झाल्यावर. मी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी शेअर करतो. कपलसाठी लेक्चर होता. तर लेक्चर झाल्यावर ना एक हजबंड आले, खूप खुश झाले. म्हणाले, डॉक्टर साहेब खूप छान बोललात तुम्ही, खूप छान. हे सगळं ना माझ्या बायकोनी ऐकायला पाहिजे होतं. तिला फार गरजेचं आहे. मी म्हटलं कुठे आहे? त्यावेळेला ती आज आली नाही, तिला उद्या मी पाठवतो, मी नाही येत आहे. तर नेक्स्ट डे अगेन इट वॉज द सेकंड डे ऑफ द सेशन. आणि एक लेडी आली आणि म्हणाली, डॉक्टर साहेब किती छान बोललात तुम्ही, हे सगळं ना माझ्या नवऱ्याने ऐकायला पाहिजे होतं. आणि ते हे दोघं नवरा बायको आहेत हे आपल्याला कळलंच असेल. सो इट इज ऑलवेज टफ इन अ फॅमिली लाईफ. घर गृहस्थ मध्ये राहून बाबा आम्हाला नेहमी सांगतात
की जे बॅचलर आहेत त्यांना एवढी चॅलेंजेस नाही आहेत, पण जे फॅमिली लाईफ जगतायत त्यांना पती पत्नी मुलं आहेत, काही वेळेला पॅरेंट्स असतात, आणि हे सगळं करत असताना तुम्ही बॅलन्स ठेवणं हे कठीण आहे. आय ऍक्सेप्ट दिस. हे कठीण आहे. अँड दॅट्स व्हॉट द पुरुषार्थ ही. पुरुषार्थ हाच आहे की हे सगळं करत असताना स्वतःला शांत ठेवणं हे कठीण आहे. आय ऍक्सेप्ट दिस. पण ह्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर मला असं वाटतं, इट इज युअर चॉईस, की तुम्ही ना एक तर प्रत्येक व्यक्ती जो तुमच्या आजूबाजूला असतो ना त्याला तुम्ही, माझ्याकडे मेजॉरिटी लोक काय म्हणतात की मला एक म्हणजे लग्नापूर्वी लग्नानंतर पण वेगवेगळ्या सिच्युएशन असतात, म्हणतात की मला परफेक्ट व्यक्ती पाहिजे. लग्नापूर्वी मुलं मुली म्हणतात मला परफेक्ट पार्टनर पाहिजे, किंवा लग्नानंतर भांडणं होण्याची कारण जेव्हा मी त्यांचं वाक्य ऐकतो म्हणतात लग्नापूर्वी असे नव्हते किंवा लग्नापूर्वी असं होत नव्हतं. सो व्हॉट इज हॅपन आफ्टर मॅरेज, किंवा परफेक्ट कुणी असतं? परफेक्ट कुणी नसतं मॅडम. एव्हरीवन हॅज देअर फ्लॉज. आपण त्यांना परफेक्ट होण्यासाठी मदत करायची असते. तर नेहमी लक्षात ठेवा की पीपल आर नॉट परफेक्ट. पीपल हॅव सम वीकनेसेस, सो दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. त्यांच्याकडून चुका होणार, तर ते चुका माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर असू शकतात, त्याची ग्रेडिंग असू शकते. फक्त काय गरज आहे, मला असं वाटतं की समजून घेण्याची जास्त गरज आहे दुसऱ्यांना. आपण मराठीत खूप चांगला शब्द वापरतो, त्याला समजावून सांगितलं. समजावं लागतं. समजतं. सम म्हणजे त्याच्या लेवलवर जावं लागतं. यू हॅव टू अंडरस्टँड द अदर पर्सन. जेव्हा अंडरस्टँडिंग असते ना चांगली, की हा असा का वागतोय, काहीतरी कारण असेल ना त्याच्या मागे. जेव्हा आपली अंडरस्टँडिंग मोड मध्ये आपण जातो ना, तेव्हा त्या व्यक्तीला ऍक्सेप्ट करणं सोपं जातं. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सगळ्या भांडणाचं कारण आहे की आपण ऍक्सेप्ट नाही करत दुसऱ्या व्यक्तीला. आणि ऍक्सेप्ट का नाही करत? कारण आपण त्याला समजून घेत नाही, तो असा का वागतोय. आणि अंडरस्टँडिंग आणि ऍक्सेप्टन्स साठी त्याला ऐकून घेणं फार गरजेचं आहे. मी बघतो मेजॉरिटी लोक ऐकायच्या अगोदरच रिॲक्ट करतात. पीपल आन्सर फॉर, लिसन फॉर रिप्लाइंग, नॉट अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला समोरच्याला ऐकून घेतलं पाहिजे पहिलं, आणि त्याला वेळ द्यावा लागतो. कारण सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहेत. काही लोकांना फिजिकल आहेत, काही लोकांना मानसिक आहेत, काही लोकांना फायनान्शियल आहे, आणि प्रत्येक जण आतून खाली आहे. मग आता होतं काय की एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला म्हणतो हे मला रिस्पेक्ट देत नाही, किंवा हे मला प्रेम नाही करत पहिल्यासारखं, जे काय असेल ते. आता तो कुठून आणणार, कुठून? तो त्याचं प्रेम संपलेलं असतं किंवा तो थकलेला असतो, तर तो रेस्पेक्ट किंवा लव्ह अँड ऍक्सेप्टन्स तो देऊ शकत नाही. आणि प्लीज अंडरस्टँड, 3च गोष्टी आहेत असं मला वाटतं: लव्ह, रेस्पेक्ट अँड ऍक्सेप्टन्स. आता हे कोण देणार? कोण देणार? ते आपल्यालाच द्यायचं असतं. प्लीज अंडरस्टँड. साने गुरुजींचा माझ्या मते आजचा दिवस आहे. मला माहित नाही, करेक्ट मी स्वप्नील, आज साने गुरुजींचा दिवस आहे का? सर नॉट कन्फर्म. पुण्यतिथी आहे त्यांची आज. काल होती बहुतेक. साने गुरुजींचा दिवस आहे. त्यांची कविता होती की खरा तो एकच धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. प्रेम म्हणजे फिजिकल लव्ह नाही, इट इज ऍक्सेप्टन्स ऑफ अदर पर्सन ऍज ही ऑर शी इज, अँड दॅट विल कम विथ अंडरस्टँडिंग. आणि तुम्ही दुसऱ्यांना तेव्हाच समजू शकता जेव्हा तुम्ही स्वतःला समजलेले आहात. सो अगेन इट बॉइल्स डाऊन टू युअर सेल्फ. आणि मी पुन्हा म्हणतो, मॅनेज युअर एनर्जीज. डोंट वेस्ट युअर एनर्जी इन चेंजिंग द अदर्स. यू कॅन सजेस्ट अदर पर्सन की तुम्ही असे वागलात तर बरं होईल, बट डोंट वेस्ट. सगळ्यात जास्त आपली एनर्जी दुसऱ्याला बदलण्यामध्ये जाते आणि स्वतःला सिद्ध करण्यामध्ये जाते की मी का बरोबर आहे आणि तुम्ही का चुकीचे आहात. ह्याच्यामध्ये भरपूर एनर्जी जाते. सो स्टे पॉझिटिव्ह, मॅनेज युअर सेल्फ फर्स्ट. स्वतःला पॉझिटिव्ह ठेवा. जेव्हा आपण स्वतःला पॉझिटिव्ह ठेवतो ना, तेव्हाच आपण दुसऱ्यांना मदत करू शकतो. अदरवाईज वी कांट डू एनिथिंग. आणि माझी सगळी कॉन्फ्लिक्ट जे संपलेले आहेत फक्त एकाच अभ्यासाने, हजबंड वाईफ कॉन्फ्लिक्ट और फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट. जेव्हा दुसऱ्यांची आपण विशेषता बघायला सुरुवात करतो तेव्हा कॉन्फ्लिक्ट संपतात. तुम्ही बघा, कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये आपण दुसऱ्यांची, जेव्हा आपण डिस्टर्ब असतो तेव्हा विशेषतेवर लक्ष नसतं, त्याच्या अवगुणावर आपलं लक्ष गेलेलं असतं. Of course, something has happened. That's why the person is behaving like this. So understanding, understanding and understanding. Understanding leads to acceptance. For understanding, listening. And listening others च्या अगोदर listening to the self. And managing your energies.
The best way to change the others is change yourself by being positive all the time. I know it is tough, but that is the treatment. I call upon Dr. Jagruti Shah Madam for her remarks. You know, I'm so glad. I was just listening and listening. I was not able to say anything, sir. It was such a lucid talk, sir. I'm just unable to express myself. It was highly needed, sir. Because being professional, we know, like we want to be professional all the time. And when it comes to manage the things, we manage fast. Like in that case, we make many mistakes, you know? Yeah. So we as a professional, as a like other people also, we need to listen to you very, very carefully. I have written your points also. And sir, your talk was absolutely excellent. And one should implement all your points, I think. Not just listening, we have to implement in our life. Every word of yours is like golden word. Sir, in between, I would like to say something that in between only I had a labor patient. I did that vaginal delivery so calm, quietly. So within few minutes only, I was relieved. She was also relieved. And I changed my clothes, everything quietly. That today's talk was absolutely wonderful. It worked wonders for me, sir. And I hope everyone should be benefited a lot from you, sir. And we will always cherish this webinar a lot. And I wish, and I'm sure that every member of our WDW, that is Women Doctors Wing of IMA, and Obstetric and Gynec Society members, and those who are not doctors and those who are listening to you, they will remember this webinar always. And we would like to listen to you once again, sir. We need that, rather. So thank you very much, sir. Thank you. How is the baby? Baby is absolutely fine, sir. Baby had cord around neck and 3.5 kg. Still very well. Calm and quiet. Why? अच्छा 5 kg बाप रे 3.5. अच्छा 3.5. 3.5, yes. Yes. Yeah. Very nice, sir. Shalaka, Yes, please. ma'am. I would like Dr. Usha to please propose the vote of thanks. And before that, Shalaka, I think Yes, ma'am. Jyoti Agrawal is there and she would like to appreciate sir, I think. Okay, ma'am. Yeah. Please, Jyoti, ma'am. She's our vice chairperson. Hello. Yeah. Yeah. Good evening, sir. Good evening to everybody. It was such a nice and amazing talk. And I feel so pleased, sir, that for us, you are there to help us, to provide your inputs, to provide your suggestion to how to calm yourselves. And basically what you told us, that you should spend your energy to improve yourself only. That matters the most, I think, and that is the point we should all of us take from your talk. And I have definitely taken down that deep breathing exercise of yours, which you have suggested, and all those forgiveness, I think, which you said is the very big point, which helps you to calm yourself and your environment. And I would definitely like to hear you again, sir, so that we are always getting that positive energy from a very positive person like you, and also others from your center. We would like to hear so that we always feel positive from your side. Thank you so much. Let's thank Dr. Asha Thakre, who has become an instrument for all the doctors of Amravati. Yes, definitely, sir. हाँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सीता दीदी है हमारी अमरावती की, काफी सीनियर है और काफी भाई बहने अमरावती सेक्टर में है सीता दीदी के साथ
जो बहुत अच्छी सेवा अमरावती और आजू बाजू के क्षेत्र में कर रहे हैं। आई नो इट इज टफ, सी जो मैंने बोला ना ये सब थ्योरी और मेरे एक्सपीरियंस है, आपको प्रैक्टिस करना। ओ ब्यूटीफुल बेबी, Thank you, sir. अच्छा, तो बेबी भी आ गया। हाँ, दिस इज अ काम बेबी, काम क्राइसिस में आई हुई बेबी का फोटो भी हमने देख लिया। याद रखूंगी सर मैं। हाँ, इसका नाम क्राइसिस मत रखना, लेकिन उनको बोल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें ना बोलना, शायद मैंने ये भी कहा कि मेनी डॉक्टर्स नो इट ऑलरेडी। ऐसे नहीं मैंने कोई नई बात कही, ऐसे नहीं कहा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, अपने जीवन का अनुभव बताया। ऐसे नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग करते भी होंगे। एट टाइम्स क्या होता है, हम डिटैच सिचुएशन से डिटैच नहीं हो पाते और वो विजडम आता नहीं है। पता होता है लेकिन वो मर्ज रहता है, वो उसी मोमेंट पे वो एक्टिव हो जाए और हमारे लाइफ में आ जाए, उसी की बात है। नहीं तो जैसे हम सीनियर होते जाते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं। एवरी पर्सन लर्न सम हिज और हर लाइफ। तो वही मैडम ने जो बोला, प्रैक्टिस की बात है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड यू कैन डू इट। और इसके लिए रोज प्रोग्रामिंग चाहिए। ब्रह्मा Yes. कुमारी की विशेषता क्या है कि हम लोग रोज मुरली सुनते हैं, भगवान के महावाक्य सुनते हैं और अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सी वी आर नॉट डिफरेंट बीइंग्स, वी आर आल्सो लाइक एवरीवन एल्स। लेकिन रोज थोड़ा 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 अंदर डालते हुए ना वी कुड कंट्रोल अवरसेल्फ। थोड़ा कंट्रोल आया है, पूरा नहीं आया है, आई एक्सेप्ट दैट। बट विद प्रैक्टिस हम शांत रहना सीख लेते हैं और हमको पता चलता है कि शांत रह के भी काम किया जा सकता है। ये हमको अंदर से आता है विद प्रैक्टिस। तो मैं आपको सबको यही कहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परमात्मा की मदद आपको मिलेगी। थैंक यू। Yes, sir. The 1 minute meditation which you said Yeah. for every hour, that is a very beautiful tool to calm ourselves. Yes, Yeah. sir. And I found the positive surroundings which this group, like IMA Doctors Wing group or Obsgynics group or all the doctors group which are helping their friends, their associates. This positive environment also helps us to keep us calm and fight during this crisis. Thank you so much, sir. Yes, Usha, you can take over. Dr. Usha, please unmute yourself. अनम्यूट करो, अनम्यूट। It's my honor to offer vote of thanks for today's meeting, jointly arranged by OBGY Society and IMA Women's Doctor Wing. On behalf of Women's Doctor Wing and OBGY Society, I heartily congratulate today's speaker, Dr. Sachin Parab sir. It was an awesome talk. And thankful to you, sir, for enlightening us. And all the participants of this meeting are inspired by your highly sparkling words. Thank you. I'm thankful to respected Sita Didi, Brahma Kumari's coordinator at Amravati, and Dr. Swapnil Sonane for making this virtual platform available to us, and all your help, sir. Now, this webinar was possible only because of our respected Asha Thakre ma'am, who coordinated with the Brahma Kumaris and Dr. Parab sir. I'm thankful to IMA President, though I think he's not there, Dr. Dinesh Thakre, IMA President-elect, Dr. Manish Rathi, IMA Secretary, Dr. Sandeep Dankhede. I'm thankful to WDW Chairperson, Dr. Jagruti Shah ma'am, Dr. Meenal Deshmukh, OBGY President, Secretary Dr. Shalaka Bari,
OBGY Society, and all the members of OBGY and WDW. I'm thankful to all the participants for joining the meeting. Thank you, everyone. It was a really wonderful talk. Thank you. Shalaka, do you have to say anything? Hello. End the meeting. If anybody Yeah. has questions. Dr. Sachin Parab's number is on the screen. So if anyone wants to take note, so they can take note of the number. Yeah, sure, sir. Hey, can I take a आपके सबके परमिशन से मैं जा सकता हूँ? हाँ सर. Yes, sir. Thank you. Thank you sir. very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. And Shanti. Om Shanti. मैडम 3-4 sentences तो हमने लिख करके रख लेने चाहिए. Like I can do it. बड़े बड़े sentences लिख के रखने, यानी बड़े अक्षर में लिखना चाहिए. I मैडम do it. Control the emotions. Yes. मैडम जो सर ने बोली है ना बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है, वो पढ़ना बहुत सुंदर बुक है. हाँ ना, बहुत सुंदर है. वो मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है. मेरे पास दोनों वर्जन है. बहुत अच्छी है. सबने बाय करना और घर पे रखना. मिनल ने ऑलरेडी पढ़ा, इसलिए मिनल बहुत काम रहती है. नहीं, मैं काम आशा मैडम के साथ रह रह के हो गई हूँ. सभी लोग राजयोगा प्रैक्टिस करें. सर ने जो भी पॉइंट्स बताए थे, ये जो भी आता है, सोचने का जो तरीका है वो डेली मेडिटेशन से ही आता है. तो हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ठीक So, है. Ashita, I just wanted to ask whether should we stop the recording? Yes, sir. Yes. Yeah. So, Akhil bhai,